Hello students. We are doing the chapter number 7. The name of chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Okay. In this chapter, we have done the definition about the climate and weather, and we have done the many topics which are given within this main topic. Okay. Dear students, in last video what we have done the you can say the reasons or according to the climatic condition. Two reasons we are going to do study in this chapter, which are the polar region and next one is the tropical rainforest region. In polar region we have seen the poles means the north and south pole of the when you see the earth, you can get the idea from there. The poles are the north and south pole of the earth is known as the pole, and the region near that poles are known as the polar region. According to their region and conditions, animals are survive in that particular environment, and the features they have which help them to survive in that climatic conditions are known as the adaptation, which we have done in the last video. And dear students, we have seen the migratory word there in that topic. The migratory means going to one place, to migrate from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. Okay. So migratory bird, we have seen the Siberian crane in a winter season when it feels so much cold. To survive in to remain warm, it must go to the another safe place. So this is the you can say migration of that crane, or you can say the Siberian crane, which go from the Siberia to the safe place like the in Rajasthan, Bharatpur and in Haryana. So this is known as the migration. Okay, and the bird is known as the migratory birds. Got it? And you have done the weather also. Weather depend on the atmospheric changes like the temperature, rainfall, humidity and wind speed is known as the weather. And the long period of time weather is average weather is you can say taken for a 20 to 25 year, that is known as the क्लाइमेट. वो अपन ने किया था कि वो क्लाइमेट कहलाता है. वेदर के जो एलिमेंट्स है वो अपन ने देखे थे. टेम्परेचर है उसको अपन किस में मेज़र करते हैं, विच इज़ टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर. ओके. और ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसको मेज़र करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर को अपन यूज़ में लेते हैं. इसके बाद अपन ने देखा था रेनफॉल को मेज़र करते हैं अपन रेन गेज से करते हैं. उसके बाद अपन ने देखा था ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं अपन हाइड्रोमीटर से, है ना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर हाइड्रो मीन्स हाइड्रो वर्ड मीन्स द वाटर, but the instrument named is a hygrometer, HYGRO, that is hygrometer. So keep in mind, sorry again I have written this hygrometer. Okay beta, it's a hygrometer. And another we have written in the notes also the wind speed. Actually blowing of wind in a different direction is measured by the wind vane. अगर विंड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है ना, डायरेक्शंस में जा रही है, तो विंड डायरेक्शन हो गई ना, वो क्या हो गई, विंड डायरेक्शन. एंड विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज विंड वेन, विच यू हैव रिटन, है ना. अपन ने विंड स्पीड एक्चुअली डायरेक्शन जो वर्ड है वो शायद छूट गया था, ब्लोइंग लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने, तो उसकी जगह आप डायरेक्शन कर लेना. द डायरेक्शन ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय द विंड वेन एंड द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर. किससे होती है, विंड स्पीड को अपन मेजर किस में करते हैं, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर. किससे की जाती है, एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे विंड स्पीड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड. ओके. अगर अपन ने विंड वेन लिखा है तो वो विंड डायरेक्शन के लिए है. विंड स्पीड को अगर अपन लिखेंगे तो इसमें एनीमोमीटर करेंगे. ब्लोइंग की जगह डायरेक्शन अपने को लिखना है. एक्चुअली ब्लोइंग लिख के मैंने डायरेक्शन लिखना छूट गया था, तो वो हम अभी कर सकते हैं. ठीक है. ओके. आफ्टर दैट वी हैव डन द पोलर रीजन. पोलर रीजन्स में अपन ने देख लिया था.
कि उसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अडेप्टेशन कैसे होते हैं। वो थिक फर वाले होते हैं, वाइट स्किन होती है, थिक होती है, दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो, they have the sharp claws to you can say help them to walk in a ice. They have the streamlined body, and these so many we have written already. Now in this video I am going to explain the last topic, that is given the tropical rainforest. Tropical rainforest के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. So before going further I am going to explain about the tropical region. Okay, ट्रॉपिकल रीजन के बारे में अपन बात करते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रॉपिकल रीजन. अपन ट्रॉपिकल रीजन के जो फीचर्स हैं या अपन कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं विच हेल्प देम टू एक्सप्लेन अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन. आई हैव रिटन हेयर इट लोकेटेड अराउंड इक्वेटर. ओके, ये जो रीजन होता है कौन सा ट्रॉपिकल रीजन है, सिचुएटेड अराउंड द इक्वेटर. ये इक्वेटर जो लाइन होती है यू हैव स्टडीड इन SST ऑल्सो. ये हमारी लाइन जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर. इस लाइन के ऊपर नीचे का जो प्लेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन. ये रीजन क्या कहलाता है हमारा, ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट दैट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज गिवन, द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. इसमें टेम्परेचर है इतना रहता है कि विंटर्स में, अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर्स में भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है. और अगर हम समर की बात करें, इट इज गिवन द एवरेज एंड यू सीन दैट इन आवर एरिया वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द टेम्परेचर गो हायर एट 48 डिग्री सेल्सियस. 48 तक भी हमने, इवन 49 कई बार जो भी है चूरू डिस्ट्रिक्ट में और इन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट रहता है वहाँ पे टेम्परेचर मेज़र किया गया है 48 एंड अबोव 48 ऑल्सो, जो कि बहुत ही हाई है. तो एवरेज के बारे में अगर बात करें तो टेम्परेचर कह रहा है कि हमेशा ही इतना रहता है. मीन्स यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम द टेम्परेचर that in a winters you get the temperature 15 degree Celsius. That means there is no so much cold in that areas. उस एरिया में ठंड नहीं या ना के बराबर अपन मान सकते हैं. 15 डिग्री नॉर्मल एक टेम्परेचर है, तो अपन 15 डिग्री पे विंटर्स में है ये. ठीक है, और हम बाकी दिनों की बात करते हैं तो वो कितना चला जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है. सो यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द टेम्परेचर और द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट ट्रॉपिकल रीजन. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन द लेंथ. और इन एरियाज के अंदर डे और नाइट की जो लंबाई होती है वो लगभग इक्वल ही रहती है. ऐसा नहीं है कि जो डे है वो 6 आवर का रहा और नाइट है वो 18 आवर की रही. इक्वल 12 आवर हम देखते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं. दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. यहाँ पे रेनफॉल जितना चाहिए होता है उतना होता है, ज़्यादा बोल सकते हैं नहीं होता है. मतलब जितनी रिक्वायरमेंट हो काम चल जाता है, इतनी ही बारिश, इतनी यहाँ पे बारिश होती है. तो बारिश क्योंकि प्रॉपर इस रीजन में मिल सकती है तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये रीजन कैसा रहता है, वेट भी होता है. जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश होती है, तो इट्स वेट ऑल्सो. हॉट एंड वेट we can get the idea about the tropical region that region are hot and wet. ये कैसे होते हैं, गरम और गीले होते हैं, यानी कि बारिश भी होती है. These regions get plenty of rainfall we have done because of the continuous warmth and rain. Continuous क्योंकि गर्मी रहती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रेन रहती है. दिस रीजन सपोर्ट्स वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और इस एरिया के अंदर क्योंकि इस तरह का जो एरिया होता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो एक यू कैन से मीडियम टाइप का जो टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स है वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे different variety of animals or plants you can see in that type of
एरिया या रीजन, इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में हमें एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। अब जो एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनके जो अडेप्टेशन है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं अपन, कि उनके अडेप्टेशन क्या होंगे या उनके अंदर कौन से फीचर्स होंगे जिनकी वजह से वो इस टाइप के क्लाइमेट में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। नॉर्मली हम जो हैं लगभग हमारा भी यहाँ का जो टेम्परेचर है, हम इसी एरिया के अंदर आ जाते हैं जिसमें क्या है, हॉट है। एक्चुअली हम तो मोस्टली ड्राई एरिया ज़्यादा होता है, वेट इतना नहीं होता, लेकिन कुछ एरिया जहाँ पे वेट भी होता है तो लगभग हम उसके नियरेस्ट हैं, है ना, उसके लगभग पास में ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो वेरी करती हैं और इस टाइप के क्लाइमेट में वो हम भी उसी के अंदर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, उनकी जो एडेप्टेशन है या फीचर्स हैं उनकी बात करें तो मैं कुछ पॉइंट्स या कुछ इसके बारे में, एडेप्टेशंस के बारे में बता रही हूँ, जिसका एग्जांपल करके हम आराम से समझ सकते हैं। The animals which are found in that area are mostly living on the tree. ये मोस्टली किसके ऊपर रहते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं, बिकॉज देर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो देर इज अ डिमांड ऑफ फूड एंड शेल्टर इज ऑल्सो देयर। अगर जहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स होंगे तो उनकी फूड डिमांड और उनकी शेल्टर की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो सर्वाइव करने के लिए, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं तो उसके लिए उनके पास अलग अलग यू कैन से एडेप्टेशंस होते हैं कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑन द ट्री, ये एक प्रॉपर्टी है कि वहाँ के में जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज़ के ऊपर भी अपने शेल्टर लेते हैं या ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, तो अपनी लाइफ को वहाँ पे स्पेंड करना पसंद करते हैं। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, दे आर लिव ऑन द ट्रीज एंड यू कैन से द एग्जांपल ऑफ मंकी, है ना, एक रेड टेल्ड जो है मकाऊ, मंकी का एक एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, विच स्पेंड लॉस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्रीज। वो अपने जो ज़्यादातर लाइफ है वो ट्री के ऊपर ही क्या करता है, स्पेंड करता है। तो ट्री के ऊपर रहना एक पॉइंट हो गया। दूसरा हम बात करें डेवलप्ड लॉन्ग टेल, और इनकी जो टेल होती है, मंकी की बात कर लेते हैं तो टेल कैसी होती है, इसकी लॉन्ग होती है, विच हेल्प देम टू जंप फ्रॉम द वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच ऑफ द ट्री। ट्री की ब्रांच पे एक जगह से दूसरे जगह जाने पे और उनको पकड़ने के लिए, टू होल्ड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, दे हैव द लॉन्ग टेल। ये भी इनका फीचर हो गया। तीसरा हम बात करें, दे हैव द लार्ज बर्ड्स ऑफ दैट रीजन हैव द लार्ज बीक। उनकी जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन एग्जाम्पल अ स्पेशल बर्ड दैट इज द टोकन। टोकन तुम्हें एक बर्ड दे रखा है, उसकी बीक इतनी लंबी होती है टू कैच द फ्रूट्स, है ना, और वो थोड़ी सी हार्ड होती है फ्रूट्स वगैरह को पकड़ने और उसको काटने के लिए, क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर ही रहता है। तो प्लांट्स पे जो मिलने वाले फ्रूट्स है उसको खाएगा, तो उसके लिए वो बीक जो होती है वो डेवलप्ड होती है, ताकि उस कंडीशन में मिलने वाला जो भी फूड है उसको वो इजीली गेन कर सके। नेक्स्ट, दे हैव द ब्राइट कलर। इनके कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं। तो अपन ने बर्ड्स भी बहुत सारे देखे, एनिमल्स भी देखे हैं, उनके जो कलर हैं वो डार्क कलर में मिल जाते हैं, जबकि आईसी एरिया यानी कि पोलर रीजन में अपन ने देखा था मोस्टली कैसे रहते हैं, वाइट कलर के रहते हैं। तो यहाँ पे अपने को कलरफुल वेराइटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, दे हैव द यू कैन से द लाउड वॉइस। ये जो इनकी वॉइस जो होती है वो भी क्या रहती है, लाउड रहती है। वो एक यू कैन से इन द फॉरेस्ट देयर इज अ large variety of animals and plants there, and so many number of plants are there to give the information, you can say to message to the another species of that particular animal, है ना। they have the loud voice, उनकी वॉइस भी क्या होती है, आवाज़ है उनकी वो तेज़ निकलती है। तो अपन कह सकते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो भी तेज़ होती है। नेक्स्ट, डाइट ऑफ फ्रूट, क्योंकि फॉरेस्ट में है, वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो उनकी जो डाइट होती है वो भी क्या होती है, दे फीड ऑन द फ्रूट्स मोस्टली। वो फ्रूट्स को खा के अपना काम चला लेते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, दे हैव द सेंसिटिव हीयरिंग। उनकी जो हीयरिंग होती है, हीयरिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो जल्दी से कोई चीज़ सुन लेते हैं, जैसे कोई भी प्रेडिटर आ रहा है कोई भी, तो उनकी कदमों की आवाज़ से या उससे उनको पता चल जाता है और दे गो ऑन अ सेफ प्लेसेस। ओके, दे हैव द शार्प आई साइट।
उनकी आंखें हैं वो भी इतनी तेज होती हैं कि दूर से ही आने वाले को क्या कर लेती हैं, आइडेंटिफाई कर लेती हैं, पहचान लेते हैं कि सामने प्रेडेटर आ रहा है, कौन है, हमें कैसे बचना है। इसके अलावा उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत थिक होती है, ठीक है। स्किन है उनकी मोटी होती है, थोड़ी सी फैटी होती है, जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा एबिलिटी टू कैमोफ्लेज इन द क्लाइमेट, उनमें एबिलिटी होती है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है वो जैसा जिस एरिया में, या कह सकते हैं कि अगर प्लांट्स के अंदर हैं वो तो ग्रीन लीव्स हैं, तो अपने आप को छुपाने के लिए उनकी स्किन में इस तरह का एडप्टेशन होता है कि वो अपना कलर, स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो प्रेडेटर्स जब आते हैं तो वो उनको कैच करने के लिए वो देखेंगे तो कलर उनका मर्ज कर जाता है उनमें, प्लांट्स में, तो वो उसको पहचान नहीं पाते कि यहाँ पे कोई है या किसी को हम कैच कर सकते हैं। तो वो अलग अलग जगह पे जाके उनकी स्किन में इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन चेंज देयर कलर, तो ये कहलाती है एबिलिटी टू कैमोफ्लेज, ओके। एंड दे हैव द शार्प नेल्स और पैटर्न्स, उनके जो हाथ होते हैं वो भी थोड़े से क्या होते हैं, शार्प रहते हैं। कोई बार्क वगैरह होती है, जैसे मंकी है तो उसको इंसेक्ट्स वगैरह भी कई बार वो खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह से काम नहीं चलता। तो ट्रीज़ के ऊपर जब हैं वो रहते हैं तो उनकी बार्क के नीचे जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, टू कैच देम दे टीयर दैट बार्क फ्रॉम दैट शार्प नेल्स, उनके शार्प नेल्स उसको टीयर करते हैं, देन दे गिव द food and they feed on that. So these all are the adaptation of animals, plants which are found in the tropical region. और इस रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं या क्योंकि बारिश हो रही है, plenty of water is also there, so they are known as the ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे जो मिलने वाला फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और उसी रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल हैं वो सर्वाइव करते हैं, तो उनके अंदर जो बॉडी में जितने चेंजेस हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, जो उनके फीचर्स हैं, वो उनके क्या कहलाते हैं, एडेप्टेशन कहलाते हैं। दिस इज अबाउट द चैप्टर। I hope you understand all the topic which are given in this chapter. In your keywords you have given the definition of maximum temperature, minimum temperature, weather, climate, migration, and you can say the another climate is also there. So most of the things which are given in the topics which are given, or the definition which you have to ask from the book, you have done already in your chapter, so there is no need to write them again. उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे मोस्टली मुझे लग रहा है कि हम कर चुके हैं। और एक दो अगर नहीं होगी, मुझे ऐसे लगेगा, आई विल प्रोवाइड इन द नोट्स एंड यू कैन do it from the notes. And if I am going to talk, if we are talking about the exercise of that chapter, you can do the fill-ups, match-ups, and the multiple choice question from the book. True false also you can do the exercise in the book only. And the theoretical questions which are given there, you have to write in your notebook by writing the name of the chapter. चैप्टर का नेम लिख के हम उसका क्या करेंगे, लिखेंगे। इससे क्या करेंगे, अपन जो अपना जो रिटर्न वर्क है वो अपन अच्छे से कर पाएंगे, और बाकी हम किस में करेंगे, बुक में लर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज द क्लाइमेट, वेदर and adaptation of animals which are found in that particular region or area. Got it? I hope you understand the chapter. This is most of the part of this chapter is related to the SST. And students, the region, like polar region, the name of country which are given to you in a polar region, and the tropical region also, some name of the places are given there, so you can get the idea from that places बाई टेकिंग द मैप, है ना। अब मैप लेके उस मैप में वो सारे जो कंट्रीज़ हैं जो इन रीजन में आते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मैप में उनको लेबल कर सकते हैं, और अपन फिर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़, ये कहाँ कहाँ के प्लेसेस हैं। और अपन अगर पूरे उसकी रीजन जोग्राफिकल स्टडी अगर इसकी करना चाहें तो इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि इक्वेटर लाइन के ऊपर नीचे वाला एरिया कौन सा होता है। ये जो ज़्यादा ऊपर नीचे चले जाते हैं अपन, पोल्स पे चले जाते हैं, तो ये पोलर रीजन जिसको बोल देते हैं अपन, है ना। आइस वाला एरिया है ये बोल देते हैं, बीच वाला एरिया है
वो किस में आता है। तो ये सारा हमारे SST में भी हम रीड कर लेते हैं। और फॉर द प्रैक्टिस यू कैन डू थ्रू दिस चैप्टर ऑल्सो। सो टेक ए मैप एंड यू कैन फिल दैट countries in the map and you can get the data about this reasons. Got it? I hope you understand the chapter and do your study well and stay safe at your home. Thank you.